Good evening, dear students. Now we are going to study basic of biopharmaceutics. We shall start within 5 minutes.
Dear students, today for some reasons I will come home late. That's why now I will start the class. Today we are going to study Unit 5, Basics of Biopharmaceutics, in which you have to study. इसमें आप करेंगे Introduction, Fundamental Aspects, Bioavailability, Pharmacokinetic, Absorption, GI Barriers. ये सब आप इसमें करेंगे. अब आ जाते हैं इसमें Pharmaceutics होता क्या है? The study of pharmaceutics deals with the fabrication of drug products that contain the same therapeutically active drug that may cause different inactive ingredients or excipients. Moreover, the method of fabrication of the drug product may also be varied by each manufacturers, which in turn depend upon the physiochemical property of drug. The type of formulation, route of administration, all affecting the therapeutic activity of the drug. Biopharmaceutics is a branch of pharmaceutics which deals with the establishment of physiochemical properties of drug and therapeutic responses, in which there are some objectives which you have to study: biopharmaceutics, bioavailability, absorption, disposition, haptic elimination, drug clearance. In which biopharmaceutics is the branch of pharmaceutical science encompassing the study of the relationship between physiochemical properties of drug in a dosage form, therapeutic response observed by its administration. Biopharmaceutic deals with the investigating rationally the influence of factors that is the therapeutic effectiveness of drug. In which biopharmaceutics क्या होता है? Pharmaceutical science की एक ब्रांच होती है जो आपको ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती हैं, वो कैसे ली जाती है, कैसे डील करते हैं, ये सब उसमें पढ़ाया जाता है. उस टर्म में आप ये सब सीखते हैं. Bioavailability indicates the measurement of the rate and extent of the active ingredients, active drug delivered from a drug product. ड्रग प्रोडक्ट में से ड्रग कैसे डिलीवर होती है वो सब इसमें बायोअवेलेबिलिटी में होता है. मैंने पहले बताया था कि एक ड्रग हमारी डोज जो है हमारी ड्रग जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को कितनी अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी. In which the general circulation, the nature and intensity of biological effects are generally proportional to the amount of drug that made available to the body. The rate of drug delivery, thereof the effectiveness of dosage form is judged by the efficiency, which इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. जो हमारी ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम को किस अमाउंट में कितनी फ्रिक्वेंसी में अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी. सिंपल सी भाषा में ये चीज़ समझ लो, ठीक है. पर ये है कि जो हमारी डोज है उसकी नेचर क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की इंटेंसिटी क्या है, जनरली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट मेड अवेलेबल टू द बॉडी. द रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी, देयरफॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ डोजेज फॉर्म इज जज्ड बाय द ड्रग कॉजिंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. किसी ड्रग का क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो ड्रग बायोअवेलेबिलिटी के थ्रू पता लग जाता है. The study of biopharmaceutics relate to the physiochemical property of drug product to the bioavailability of therapeutic active. किसी भी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ड्रग प्रोडक्ट की, उसकी वजह से आपको बायोअवेलेबिलिटी का पता लगता है, थेरेपेटिक इफेक्ट कितना है वो पता लगता है. अब आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि ड्रग क्या है, अवेलेबल भी हो रही है ये भी समझ गए, लेकिन हाउ मच अमाउंट किस प्रोसेस से गुजर रही है, क्या उसमें है, वो सब फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको पता लगेगा. जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न द स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. कोई ड्रग हमारी बॉडी में कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो रही है, कितना उसके बारे में कितने टाइम पीरियड में हो रही है, क्या स्टेप्स लेके चल रही है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स. जिसमें कि आपका आ जाता है एडीएमई प्रोसेस. Pharmacokinetics also concern the relationship of these processes to the intensity, the time course of therapeutic effect, and toxicological effect of drug. ड्रग का फार्मास्यूटिक्स इफेक्ट क्या है,
ड्रग कितने, इसमें ये समझो आप कि फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग हमारी जो है, उसमें तो आपने डोज एंड डिजाइन समझ गए फार्मास्यूटिक्स टर्म में। बायोअवेलेबिलिटी में ये समझ गए कि बायोलॉजिकल सिस्टम को ड्रग या डोज हमारी कितनी हाउ मच अमाउंट में वो अवेलेबल हो रही है। इसमें आप ये समझोगे इस टर्म में कि हमारी ड्रग अवेलेबल तो हो रही है, लेकिन किस प्रोसेस से गुजर रही है, हाउ मच अमाउंट जो है कितनी ड्रग हमारी अवेलेबल हो रही है, क्वांटिटी और ड्रग जितना हम उसमें डाल रहे हैं बॉडी में इंटेक करवा रहे हैं, क्या उतनी पहुंच भी पा रही है उस प्रोसेस तक। वो सब फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाता है, जिसमें और ड्रग का को रिलेशन आ जाता है, थेरेपेटिक इफेक्ट आ जाता है, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है। Readily to attempts to quantitative pharmacological response have been made of the some successes। उसमें क्या है, स्टडीज डे बाय डे होती रहती हैं, इनोवेशंस होते रहते हैं, मैंने जैसे हमेशा आपको बताया है। इसमें क्या है, देयर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिनके थ्रू इसके बारे में रिसर्च की जाती है। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट्स, इफेक्ट ऑफ बॉडी फिजियोलॉजी ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्पोजिशन, डोजेज एडजस्टमेंट इन डिजीज स्टेट, कोरिलेशंस क्या हैं, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। अब बायोअवेलेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट में आप ये क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, लिस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल काइनेटिक्स क्या होता है। अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे। ये एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, जनरल सर्कुलेशन, हमारी एब्जॉर्प्शन इज डिवाइडेड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग that reaches the general circulation and unchanged, hence as per the definition of drug that is metabolized or chemically transformed at the site of application or transit considered unabsorbed। कितनी अमाउंट में जा रही है, सर्कुलेशन से कैसे पहुंच पा रही है, अनचेंज, चेंज तो नहीं हो रही, जो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है जीआई बैरियर। मैंने आपको जैसे आपको बोला था कि लास्ट डिस्कशन में मैं आपको इसके बारे में पूछूंगी और बताऊं, इसके बारे में पूछूंगी भी आपसे, क्या आप में से कोई बता सकता है कि जीआई बैरियर क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने बोला था पढ़ के आना, क्या इसमें से मुझे कोई बता सकता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन मेथड्स क्या होते हैं। ओके, आई विल टेल यू। जीआई बैरियर से होती है that separates the lumen of the stomach and intestine from the systemic circulation, and the site of drug is a complex from the structure of composed of lipids, जो lipids से बना होता है, lipoprotein polysaccharides, and the barriers has been characteristics of semi-permeable membrane के थ्रू हमारी ड्रग किस तरीके से पहुंच पा रही है जीआई बैरियर को पास करके, कितना इफेक्ट दे रही है कितनी क्वांटिटी में, वो सब जीआई बैरियर के थ्रू होता है। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म्स पे। मैकेनिज्म्स क्या हैं कि जीआई बैरियर, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, इन तरीकों से ये जाता है। मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको। इसके बाद आ जाता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारी ड्रग जो है जीआई बैरियर के थ्रू परमिएट करेगी और इन प्रोसेसेस से होके गुजरेगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, और ये जनरली पूछ लिया जाता है कि वेरियस मैकेनिज्म्स क्या हैं, जीआई एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन में क्या हो जाता है, क्या डिफरेंशिएशन है। तो जब इसे करो तो बहुत ध्यान से समझदारी से करें। अब आ जाता है कि भाई इनके फैक्टर्स क्या हैं। मैं रिकॉल करवा रही हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट काउंसलिंग सेशन में ये सब बताया है आपको। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स क्या हैं,
फैक्टर एब्जॉर्प्शन के क्या इफेक्ट करते हैं? फिजियोकेमिकल तरीके से, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, इन तरीकों से ये होता है। चलिए जी, आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए। कि ड्रग कितने फॉर्म्स की होती है? क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के फॉर्म में होती है, अमॉर्फस सब्सटेंस के फॉर्म में होती है। क्रिस्टल जो हमारे, मैंने बताया था आप लोगों को कि क्रिस्टल हमारे एक प्रॉपर जब शेप होती है किसी ड्रग की, दैट इज द क्रिस्टल फॉर्म। और अमॉर्फस विच डिडंट हैव एनी फॉर्म और शेप, दैट इज कॉल्ड, कि ये भी चीज इफेक्ट करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, मैं लास्ट लेक्चर में आपको सब बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट यूनिट पर। जो मैंने आपको यूनिट 5 बताई है वो मैंने जस्ट आपको रिकॉल करवाई है, बिकॉज मैं आपको पहले काउंसलिंग सेशन में मैंने आपको बोला था कि मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन अराइज करूंगी, जैसे कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है और मैंने वो सिर्फ आपको रिमाइंड कराई है। अब आ जाते हैं यूनिट 6 पर। वो आप जब गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आपको समझ आ जाएगी जो हमने यूनिट 5 की है। मैंने आपको लास्ट में काउंसलिंग सेशन में भी उसके बारे में डिस्कस किया था। अब करते हैं यूनिट 6 के बारे में, जिसमें आ जाता है आपका बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आप पढ़ने जाएंगे। अब आ जाते हैं इसमें इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, मैं आपको जस्ट जनरली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। द फंडामेंटल ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, ये हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा है इसके बारे में कि भाई जो डिस्पोजिशन आप देख रहे हैं उसमें कवर होता है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो हमारी ड्रग है या जो हमारी दवाई है वो 4 प्रोसेसेस से होकर गुजरती है। ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में लास्ट सेशन में भी बता चुकी हूँ। इसके इसमें अब इसमें और क्या है कि भाई इस यूनिट में आप बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में करेंगे। अब चले आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे कि इसमें जनरली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, बायोइक्विवेलेंस किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, बायोअवेलेबिलिटी की, बायोइक्विवेलेंस की, फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी पे, और डिफरेंट मेथड कौन से हैं मेजरमेंट के लिए, ये सब आप इसमें देखेंगे। बायोअवेलेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन बता दी है, मुझे नहीं लगता इसे मुझे रिमाइंड कराने की आपको जरूरत है। ठीक है जी, वही है जो ड्रग डोज है, हाउ मच डोज हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को अवेलेबल हो रही है, दैट इज बायोअवेलेबिलिटी। ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट इन कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म नॉन एज मेडिसिन, दे मे कंटेन मैनी इनर्ट सब्सटेंस सच एज एक्सिपिएंट्स, बहुत सारे एक्सिपिएंट्स को मिलकर जब एक ड्रग बनती है एडजुएंट्स को ऐड कर और जब वो अपना कोई इफेक्ट दिखाती है फार्माकोलॉजिकल या कोई मेडिकल एक्टिविटी करती है वो ड्रग, उस क्या एक्टिविटी करेगी वो सम फैक्टर्स से इफेक्ट इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि हमारी मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है,
मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन से एक्सिपिएंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पेशेंट्स के लिए क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें बायोअवेलेबिलिटी को बहुत इफेक्ट करती हैं जब हम ड्रग को, मेडिसिन को इनटेक कर लेते हैं। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब कोई ड्रग आती है, वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू systemic circulation तक जाती है, that is called absorption. The concentration of drug in the plasma or body system depends on the absorption of drug. जब हमारी कोई ड्रग, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा में कितनी अमाउंट में है, बॉडी सिस्टम में कैसे जा रही है, दैट इज डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। द ऑनसेट ऑफ एक्शन, द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन कि कितने अमाउंट में जा रही है, क्या एक्सिपिएंट से मैंने आपको बताया है कि क्या उसका एक्शन है मेडिसिन का, कितनी इंटेंसिटी है, कितने टाइम पीरियड में वो एब्जॉर्ब हो रही है, बायोअवेलेबल हो रही है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके क्या क्या है, ये सब बायोअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। दैट इज योर बायोअवेलेबिलिटी। डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, तो जब भी इसको करें तो थोड़ा ध्यान से करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म इज अवेलेबल टू डिलीवर द एक्टिव इंग्रेडिएंट टू साइट ऑफ एक्शन। हमारी मेन मेडिसिन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेन मकसद मोटिव क्या होना चाहिए कि हमारी डोजेज फॉर्म जो है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जहां तक उस मेडिसिन को जाना है, साइट ऑफ एक्शन, हाउ मच साइट ऑफ एक्शन जो है वहां तक वो पहुंच जाए, और जितनी अमाउंट सफिशिएंट हमें चाहिए, डिजायर्ड जितनी अमाउंट हमें सफिशिएंट चाहिए उतनी अमाउंट साइट ऑफ एक्शन पे जाकर अपना इफेक्ट दिखाए, और फार्माकोलॉजिकल, कहा ना मैंने, टू इनिशिएट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अपना शो करे। द ड्रग इज मेड अवेलेबल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एट द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, इट कैन कॉज द एक्सपेक्टेड एक्शंस। अब आते हैं बायोअवेलेबिलिटी पे, तो ये तो हमने देख लिया कि होता क्या है, ये मुझे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं बायोअवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड डोजेज फॉर्म। ओनली अ ड्रग दैट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक ड्रग ही ऐसी होती है जो ब्लड स्ट्रीम्स में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, बायो अवेलेबल हो जाती है डोज, इक्वल टू द स्टेटेड इन द लेबल्स। जितना इसमें लिखा होता है लेबल्स में, जैसे 5 ml इतनी डोज है, वो उतनी डोज, दैट अमाउंट ऑफ डोज वो इक्वली हमारी ब्लड स्ट्रीम्स, जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं या इनटेक करते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंच जाती है। इन द केस ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स एडमिनिस्टर्ड ऑरली, the bioavailable dose will generally be less than the administered dose। जो हमारी डोज, ज्यादातर क्या होता है, जो हमारी एडमिनिस्टर्ड डोज होती है जिसको हमने इनटेक किया, जब वो कई प्रोसेस से होकर जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उतनी ही ड्रग वहां पे रीच कर पा रही है, उससे कम भी कर सकती है। मैंने बोला ना, द बायोअवेलेबल डोज विल जनरली बी लेस देन द एडमिनिस्टर्ड डोज। जो एडमिनिस्टर हो रही है उससे लेस हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ प्रोसेसेस से होकर गुजरेगी। बायोअवेलेबिलिटी देयरफॉर, तो इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ड्रग को या डोज को इस ढंग से डिजाइन करें कि अगर वो इन प्रोसेसेस से होकर भी गुजर रही है तो साइड ऑफ एक्शन पर उतना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे दे। Bioavailability therefore deals with the transfer of drug from the site of administration into the body itself as an evidence by its presence general circulation। जब हम इसको देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है बॉडी पर, वो अपने आप में एक एज एन एविडेंस काम करता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि रेट और स्पीड क्या है। द रेट ऑफ स्पीड विद विच ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हमारे लिए जब हम किसी ड्रग को डिजाइन करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, सबसे पहले हमारा मेन मोटो होता है कि हम उस ड्रग को, जो हमारी डोज है, वो जब एडमिनिस्टर हो तो इजीली इनटेक हो जाए, और जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम उसका ले वो इससे इजीली चली जाए, ठीक है। जाने के बाद क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, जितनी अमाउंट हम चाह रहे हैं, डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी दे दे, ये सब हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हम उसमें रेट ऑफ स्पीड को भी सोचते हैं कि जल्दी, अगर हम मानो बहुत लैंग्वेज में समझाऊंगे, अगर किसी के हेडेक है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या करोगे, ड्रग को इनटेक करोगे। इनटेक करने के बाद आपका सबसे पहले मेन मोटो रहेगा, यार बहुत सिर में दर्द हो रहा है या हेडेक बहुत तेज हो रहा है, फटाफट से रिलीफ मिल जाए, ठीक है। वो फटाफट जो वर्ड होता है ना, द रेट ऑफ स्पीड विद विच ड्रग इज एब्जॉर्ब इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो हमारी फार्माकोलॉजिकल डोज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रैपिड ऑनसेट एक्शन, कि
जितना इफेक्ट हम चाह रहे हैं उतना इफेक्ट हमें मिल जाए। बट ये कुछ चीज़ों में, कुछ डिजीज में ये हमें नहीं, जैसे सिवियर, मैंने बोला ना सिवियर पेन, अगर पेन है किसी को तो ये एक्सपेक्टेशन इंसान को हो जाती है। अस्थमैटिक पेशेंट है, उसको अस्थमा अटैक आ गया है, इनहेलर्स तो हम क्या इनहेलर देते हैं ना उनको कि वो फटाफट से जो वो रीच करना चाह रहे हैं, हमें फटाफट से पेशेंट को रिलीफ देना है। ठीक है, हार्ट अटैक है, उसमें भी हम लोग सोचते हैं रैपिड ऑनसेट एक्शन हो जाए, फटाफट पेशेंट की जान बच जाए। देयर इज ऑलवेज अर्जेंसी फॉर रैपिड एंड क्विक एक्शन। फार्माकोलॉजी में या फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले जब हम डोज को डिजाइन करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हम लोग पेशेंट को जब हम मेडिसिन दे तो एक रैपिड और क्विक एक्शन उसको प्रोवाइड करें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आईवी, उसी के लिए तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या जो फार्मास्यूटिक्स है इनोवेट करता रहता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तभी आईवी का या इंजेक्शंस का या पेरेंटल्स का जन्म हुआ। The parenterals an injection is an aqueous solution with other ingredients like buffer causing agents can be considered as having a maximum 100% bioavailability। इंजेक्शन इसीलिए मार्केट में होते हैं फिर कि क्योंकि एक तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 100% जो जितना ज्यादा है, एक तो आईवी के थ्रू जाएगा या जिस भी आईएम हो गए या इंट्राथिकल हो गया, किसी भी तरीके से वो जा रहा है तो ब्लड स्ट्रीम्स में डायरेक्ट जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो डीएमई प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस घट गए तो बायोअवेलेबिलिटी जितना चाह रहे हैं उतने बायोलॉजिकल सिस्टम को मिल जाएगी। ड्रग प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स इंस्टेंटेनियसली फॉर रीजन कि इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, स्टेबल रहे प्रोडक्ट, कन्वीनियंस रहे, और ड्रग हमारी अदर ओरल रूट से भेजेंगे तो टाइम लगेगा, आईवी से भेजेंगे तो कम टाइम लगेगा और बायोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगी डोज। दैट केस, इन द केस दिस डोजेज फॉर्म नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये ड्रग हमारी अवेलेबल होती है। अब आ जाते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स पे। बायोफार्मास्यूटिक्स में आप क्या पढ़ने जाएंगे, इसमें आप पढ़ेंगे, आपने बायोअवेलेबिलिटी तो जान लिया, फार्माकोकाइनेटिक्स भी जान लिया, ठीक है जी। अब आप पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स में फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, द factors influencing the bioavailability of drug in man and animals, use of this information to optimize the therapeutic activity। हम किसी ड्रग की थेरापेटिक एक्टिविटी कैसे देख पाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ड्रग जो बॉडी में जा रही है वो प्रॉपरली इफेक्ट दे भी रही है या नहीं दे रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैन एनिमल्स को हम लोग ऑप्टिमाइज पैरामीटर्स पे रखते हैं कि हम उनका थेरेपेटिक एक्टिविटी ड्रग प्रोडक्ट्स की देख सके। उसके लिए क्या होता है, क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है ड्रग प्रोडक्ट इन क्लिनिकल एप्लीकेशन। बायोफार्मास्यूटिक्स इज अ मेजर ब्रांच ऑफ फार्मेसी। इट इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो ड्रग की है या डोजेज फॉर्म की हैं, यही बहुत इफेक्ट करती हैं किसी ड्रग को क्लिनिकल रिस्पॉन्स देने के लिए जब ड्रग एडमिनिस्टर हो जाती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बाय इक्विवेलेंस स्टडी। टू ड्रग प्रोडक्ट्स हैं हमारी, दो हमने ड्रग ली, सपोज आप बिल्कुल आसान से ड्रग बताऊंगी, पैरासीटामोल सबने नहीं सुना है, पैरासीटामोल 100 mg ले लो, ठीक है। टू ड्रग प्रोडक्ट्स हमने ले ली, इक्वल डोज है, ड्रग भी सेम है, बाय इक्विवेलेंट है, यानी कि बिल्कुल सेम डोजेज फॉर्म हमने लिया है, कंसंट्रेशन भी हमने सेम लिया है, दे डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली इन द बायोअवेलेबल डोज। thus a time course of drug in the blood following the administration of both products। फिर हम क्या करेंगे, जो भी ड्रग हमारी आइडेंटिकल है, ये हमने इक्वली ड्रग्स ली, इक्वली हमने एडमिनिस्टर करी, तो बाय इक्वल्स जो स्टडी आई includes not only the amount of active ingredients available but also the rate। हमने दो ड्रग प्रोडक्ट्स को उठाया, इक्वल डोज उठाई और उसको हमने पेशेंट्स को दे दी, कितने अमाउंट, कितना टाइम लग रहा है, कितनी बायो अवेलेबल हो रही है, उस चीज की फिर हमने बायो इक्विवेलेंस स्टडी पढ़ी। द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल बट आल्सो द रेट एट विच इट इज अवेलेबल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हमने बायो इक्विवेलेंस स्टडीज तो पढ़ी, पर उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो इक्विवेलेंस। द फार्मास्यूटिकल फर्म्स मैन्युफैक्चर ड्रग प्रोडक्ट इन बैचेस। सब फर्म्स जो हैं, कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या करती हैं, बैचेस को, ड्रग प्रोडक्ट को बैचेस की फॉर्म में जनरेट करती हैं। ठीक है,
इन स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर्स उनको दिए जाते हैं. इट इज एसेंशियल दैट द ड्रग प्रोडक्ट विल हैव यूनिफॉर्म डिलीवरी सिस्टम. इससे हमें ये पता लगता है कि कौन से ड्रग का पर्टिकुलर किस नंबर के ड्रग का कितना डिलीवरी सिस्टम है एंड रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना वो टाइम पीरियड पे इफेक्ट दे रहा है. कई बार आपने सुना पर्टिकुलर कोई एक ऐसा बैच होता है जो सही काम नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर बैच की कंप्लेंट्स आ जाती हैं. ठीक है, तो उस केस इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर बैच को, जो कंपनीज होती हैं वो नंबर, बैच नंबर, लॉट नंबर देकर उसको जनरेट करती हैं. उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि इट इज एसेंशियल दैट अ ड्रग प्रोडक्ट विल हैव यूनिफॉर्म डिलीवरी सिस्टम, कि एक ये पता लग जाए कि कितना डिलीवरी सिस्टम है, कितना यूनिफॉर्मली वो दे रहा है. एंड द रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम बैच टू बैच एज वेल एज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. मैंने कहा ना कि बैच टू बैच वेरिएट करता है, कितना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरिएट करता है. बायोक्लिन्स कंसेप्ट इज अ वेरी रेलिवेंट इन द चेंज ऑफ ब्रांड्स. बायोक्लिन स्टडी का जो कंसेप्ट है ना, अब आप कोई नॉर्मल कंपनीज की उठा लो, या आप किसी सिप्ला, या आपने कई सारे नाम सुनेंगे अबॉट, इनकी प्रोडक्ट्स को उठा लो, तो कहीं ना कहीं बायोक्लिन्स का फर्क पता लग जाता है ब्रांड्स का और जेनरिक का. Brand interchanges can lead to underdosing or overdosing if the biocleanse factor is ignored. कई बार ऐसा होता है अगर हमने इस फैक्टर का ध्यान नहीं दिया तो या तो क्या होगा, या तो हमारी डोज कम हमारी बॉडी में जाएगी या ओवरडोज जाएगी. तो इसलिए हमें बायोक्लेंस स्टडीज पढ़नी पड़ जाती हैं, करनी जरूरी हो जाती हैं. और कुछ ऐसे केसेस में जब हमारी ड्रग पर्टिकुलर ऐसा है कि पूरा एब्जॉर्प्शन दिखा रही है, अनएब्जॉर्ब पोर्शन है, ड्रग जो है, जो हमने टैबलेट सपोज खाई है तो वो नीचे भी टैबलेट ही निकल के जा रही है, इन प्रोसेस से होके भी एक्सक्रीट आउट भी टैबलेट ही जा रही है, बिना ब्रेकेज के, बिना डिसइंटीग्रेट प्रोसेस को गुजरे हुए, बिना एब्जॉर्ब किए, बिना डिस्ट्रीब्यूट किए, बिना मेटाबोलाइज किए, बिना टॉक्सिक रेट को बताए, ये ऐसे ही जा रही है. ठीक है, तो उस केस में भी हमें बायोक्लिन स्टडीज पढ़नी हो जाती हैं. अब इसमें क्या है, अब आप आ जाइए, क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं बायोक्लिन बायोअवेलेबिलिटी पर. अब आ जाते हैं डेवलपमेंट कैसे हुई बायोअवेलेबिलिटी की. बायोअवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट was formally embraced 1885 में डॉक्टर डब्ल्यू ई अपजॉन पेटेंट द फेब्रिल पिल. अब पिल जो वर्ड है ना, आपने सुना होगा पिल वर्ड गोल मेडिसिन में, दैट इज इजीली क्रम्बल्ड विद द पल्वराइज्ड, वो इनके नाम से फ्राइबल पिल से पढ़ा. इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, यही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बायोअवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, कि स्टडीज होनी चाहिए ड्रग की बायोअवेलेंस स्टडीज होनी चाहिए, दो सेम ड्रग्स को रखें, इक्विपोटेंट हो, सेफ हो, प्योरिटी हो, परसेंटेज हो, स्ट्रेंथ हो, बॉडी में अगर पेशेंट के जा रहे हैं तो उतनी अमाउंट में उनको इफेक्ट दें. Today we know that the medicine produced the required content may not be therapeutically active. आजकल के टाइम में ऐसा होता है, इतना मिलावट हो रही है, या इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में डे बाय डे फार्मास्यूटिकल फर्म्स आ गई हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन जो हमारी है उतना कंटेंट हमें नहीं दे पाती, या उतना थेरेपेटिक एक्शन नहीं दे पाती, बिकॉज ऑफ देयर हाउ टू दे क्रिएट देयर ड्रग्स. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इन साइंटिस्ट ने बायोअवेलेबिलिटी की अवेयरनेस को मार्केट में या दुनिया में लेकर आए. द अवेयरनेस ऑफ बायोअवेलेबिलिटी वाज सिग्निफिकेंटली रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू सम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू साइंसेज ऑफ फार्मास्यूटिक्स, कि नई साइंसेस जनरेट हुई तो बायोअवेलेबिलिटी भी रेनोवेट हो, मेरा मतलब है इनोवेट हो गई. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी एंड व्हेन, ये सब पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए. अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी. कहा ना मैंने, आप इसमें फैक्टर्स भी पढ़ने जाएंगे. और ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन वेरियस डोजेज फॉर्म, ये सबको पता लग चुका है. अभी तक हमने जितनी यूनिट्स की हैं इन सेशंस में, सबको पता है कि ड्रग के बहुत सारे तरीके हैं, ड्रग बहुत सारे डोजेज फॉर्म में आ गई है, ड्रग को एडमिनिस्टर कराने के बहुत सारे रूट्स बन गए हैं. दे आर मेनी ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, देयर आर टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म. सबको पता है टाइप क्या है डोजेज फॉर्म की, मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, क्यों मार्केट में आए हैं, क्या जरूरत पड़ी है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है. तो ये सब पे हमें इतना टाइम डिनोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो ऑल दोज थिंग. ऑरल ड्रग में पार्टिकल साइज का क्या रोल प्ले है, मैं लास्ट यूनिट में करवा चुकी हूँ. क्रिस्टलाइन अमॉर्फस क्या है, मैंने अभी भी रिकॉल करवाया है. सॉल्ट फॉर्म किसे कहते हैं, हाइड्रेशन किसे कहते हैं, लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, पीएच कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं,
ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। फिर भी मैं इस डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि डोज़ेज फॉर्म जो भी हमारी है, उनके बनने के तरीके से। सपोज़ कोई टैबलेट है, तो वो पहले डिसइंटीग्रेट करेगी, फिर फाइन पार्टिकल्स में बनेगी, ठीक है? उसके बाद और फाइन पार्टिकल्स होंगे, फिर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगी, देन वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। अगर कोई सॉल्यूशन है, कहा ना कि सॉल्यूशन है, तो पहले डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे आएगा, ठीक है? सिरप्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे आएंगे। लेकिन इफ इन केस दे आर टैबलेट, देन दे शुड डिसइंटीग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, then deaggregate, then made fine particles. After then they uh, after then they make dissolution process. Then they do absorption of site of action. ठीक है जी। टैबलेट्स होगी तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट प्रोसेस करेगी, फिर डीएग्रीगेट करेगी, फाइन पार्टिकल्स में बदलेगी, डिसोल्यूशन प्रोसेस करेगी, ठीक है? उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस पर पहुंचेगी, ठीक है? सॉल्यूशन होगा तो वो डायरेक्ट पहुंचेगा। ये फ़र्क हो जाता है डोसेज फॉर्म का। इंजेक्शंस होंगे तो ये एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ड्रग्स से इनसे पता लग चुका होगा। मुझे आपको इनको ब्रीफ में करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। अब मैंने ऑरल लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी आपको लास्ट उसमें ब्रीफ में समझाया हुआ है सेशंस में। ड्रग कॉमनली गिवन इन अ सॉल्यूशन, मैंने कहा ना सॉल्यूशन प्रोसेस होगा। सॉल्यूशन में क्या होता है, कोल्ड कफ रेमेडीज मोस्टली मार्केट में सबने देखी है, बच्चों की भी आती है, बड़ों की भी आती है, बुजुर्ग की भी आती है, ठीक है? तो इसमें भी हमें ज़्यादा टाइम इसमें डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन है तो रैपिडली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से आएगा, मैंने डायग्राम से आपको दिखा दिया है। कंपैरिजन भी जब डायरेक्ट उससे सॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन पे आएगा तो इफेक्ट भी जल्दी देगा, रेट लिमिटिंग स्टेप रहेंगे, ठीक है जी? ये सब चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी। अब आ जाते हैं सस्पेंशन डोजेज फॉर्म। ऑरल डोजेज फॉर्म का सबको रोल प्ले पता है, ठीक है? ऑरली जाती है, क्या डोजेज फॉर्म है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से गुजरती है। अब आ जाते हैं बहुत सी इनसॉल्युबल हमारी या पूरा सॉल्युबल ड्रग्स होती है। सबने सस्पेंशंस के बारे में भी पढ़ा है यूनिट्स में, लास्ट सेशंस में। तो सस्पेंशन डोजेज फॉर्म में भी क्या होगा, सस्पेंशंस हैं, पुअरली सॉल्युबल इनसॉल्युबल जो ड्रग्स हैं वो सस्पेंशन डोजेज फॉर्म में बनती हैं, सबको पता है, ठीक है? इनकी बायोअवेलेबिलिटी सुपीरियर होती है, एब्जॉर्प्शन में विल be dissolution limited, dissolution limited. However, suspension of finely divided powder will maximize the potential for rapid dissolution, good correlation, और पार्टिकल साइज इफेक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन पार्टिकल साइज बता चुकी हूँ, सस्पेंशन में है तो नेचुरल सी बात है, आप उसका ऑटोमेटिकली चीजें समझ गए होंगे। विद वेरी फाइन पार्टिकल साइजेस द डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ द पाउडर बिकम्स important. The addition of surface active agents will improve dispersion of the suspension, may improve the absorption of very fine particle sizes. Otherwise, caking may be problem. ठीक है जी। अब आ जाते हैं पेरेंट्रल रूट। सबको पता है पेरेंट्रल रूट में क्या होता है। पेरेंट्रल रूट, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, ड्रग गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। सबको पता है ड्रग जब इंजेक्शन के फॉर्म से दिया जाता है, दैट रूट इज कॉल्ड एज पेरेंट्रल रूट, ठीक है जी। इसकी बायोअवेलेबिलिटी सबकी बायोअवेलेबिलिटी से ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसकी एडमिनिस्ट्रेट कितने तरीकों से आता है सबको पता है, IV, IM, SC, सबक्यूटेनियस, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसमें pH मेंटेन भी होती है। इसमें जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाई इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ इंजेक्शन इज लेस हैजर्ड्स देन IV रूट, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। इस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज। बायोअवेलेबिलिटी जो है ड्रग की किन तरीकों से उनको मेजर किया जाता है, दो मेजर ग्रुप है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स आर इनडायरेक्ट, they are based on the concept of pharmacokinetic profile. फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स के बेस्ड पे होता है।
उनके फार्माकोकाइनेटिक की तरह, यानी कि ड्रग कैसे एक्शन दे रही है, उससे ही ड्रग के थेरेपेटिक एक्शन का पता लगेगा। प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज के थ्रू ब्लड कितनी प्लाज्मा में जा रही है, किस लेवल से जा रही है और कितनी एक्सक्रीट आउट हो रही है, उसके बेसिस पर आपको फार्माकोकाइनेटिक का किसी के भी ड्रग की पता लग सकता है। द इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज फार्माकोकाइनेटिक मेथड टू डिटरमाइन द बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है जी। अब है द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड और प्लाज्मा इज एन इंडिकेटर ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। सबको पता है ड्रग जब प्लाज्मा में जाएगी इफेक्ट देगी, दैट इज ड्रग्स बायोअवेलेबिलिटी। सॉरी। द फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स आर डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स पे आ जाते हैं। ये सब अभी तक आपने बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक, थेरेपेटिक एक्शन, ये सब तो आपने देख लिया। अब आ जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स, किसी भी ड्रग को जब वो ड्रग क्लिनिकल प्रोसेस पे है, अपने मार्केट में नहीं आई है, उसके इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए बहुत सी जो रिसर्च हैं, आपने सुने होंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस करते हैं बिफोर वो मार्केट में कोई अपनी प्रोडक्ट्स को उतारें। सबसे पहले उनका होता है कि वो उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स करें। Drugs are used by human beings to be free from disease in ailments to protect their health। उनका मेन मोटो क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जब मार्केट में उठते हैं उससे पहले उन पर हर तरीके से ट्रायल्स हो चुके हों, ताकि वो जब ह्यूमन बींग्स के लिए जाएं तो वो उनकी डिजीज को कम कर सकें, ना कि उन्हें बढ़ाएं। The unrestricted use of new drug or medicines can sometimes be injurious to the health of the patient। कई बार ऐसा होता है अगर क्लिनिकल ट्रायल्स किसी पे नहीं किया जाता है, या बाय चांस ऐसा होता है कि कोई फर्म या कोई किसी वजह से नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं इंजीरियस हेल्थ इफेक्ट हो जाता है पेशेंट की हेल्थ पर। तो सो क्लिनिकल ट्रायल्स आर डिजाइन टू इंश्योर दैट द ड्रग इज टू बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स इज सेफ। उनको एक विश्वास दिलाने के लिए कि ड्रग जो आप तक पहुंच पा रही है वो सेफ है, इफेक्टिव है फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज डिजाइंड और मेड इन द बिगनिंग, कि जो ड्रग आप तक पहुंच रही है वो सेफ है। वो जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जैसे जो आम जनता है, वो सेफ हो जाती है कि हाँ हमारी प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है, अगर इफ इन केस क्लिनिकल ट्रायल्स उन पे नहीं होंगे। तो वो जो उन तक है कि मार्केट तक उनके पास सेफ चीज़ जाए, इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। और ये किन किन पे किए जाते हैं ट्रायल्स और एरर मेथड्स, ये हमारे ड्रग इज टू बी टेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स पे भी होती है। बेशक वो रिस्की है बट होती है। दो मेडिसिन आर ऑल्सो ओल्ड एज ह्यूमनिटी, प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स हैज बीन इनिशिएटेड इन द 18th सेंचुरी में। सबसे पहले इनिशिएट किया गया था कि ह्यूमन ट्रायल्स होने चाहिए। इन अर्ली डेज द केमिस्ट एंड द एपोथेकेरी यूज्ड टू टेस्ट द ड्रग्स इन हिमसेल्फ। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने जो देश के लिए, या कहते हैं कि ह्यूमन की भलाई के लिए, कुछ ऐसे भी विलिंगली जो पेशेंट्स थे या केमिस्ट थे, उन्होंने अपने ऊपर भी उस चीज़ का टेस्ट करके देखा उन मेडिसिन को बिफोर दे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लाने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर उनको एज अ गुड डीड उन्होंने उसको प्रेफर किया। व्हेन इट वाज नोटेड दैट स्टैटिस्टिक इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ड्रग इज इफेक्टिव। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि उसमें, ये तो आपने देख लिया क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है। इसको हम सीटीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको आप क्लिनिकल स्टडी भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल्स। जब ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाता है, सबसे आसान भाषा में बताऊंगी, जो सबने देखा हुआ है, आपने मूवी देखी होगी एक मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें जब एक पेशेंट था जिसको बार बार सब्जेक्ट कहा जा रहा था,
तो वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था, उसमें उस पेशेंट को पर्टिकुलर को एक एज अ क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर ही लिया हुआ था। ऐसे इसी तरीके से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, एम टू डिस्कवर और वेरीफाई द क्लिनिकल इफेक्ट और यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग का क्या यूज है, वो सब उस ह्यूमन सब्जेक्ट पर देखा जाता है। ड्रग कैन बी न्यू और एग्जिस्टिंग वन, या तो वो न्यू रिसर्च है तब भी देखा जाएगा, एग्जिस्टिंग वन है तब भी देखा जाएगा। टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियल एज अदर मॉडल लाइक टेस्ट इन एनिमल। वो ह्यूमंस बींग्स पर भी करना टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि एनिमल्स पर। जबकि आजकल क्या होता है, एनिमल्स को हम एडिक्वेटली नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के थ्रू। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि बिफोर टेस्टिंग द ड्रग इन ह्यूमंस इट बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस लेबोरेटरी स्टडी। जितनी भी लेबोरेटरी स्टडीज हैं हमारी, टेस्ट एनिमल्स पे उन्होंने किया है ड्रग्स को ह्यूमन बींग्स पे करने से पहले। ठीक है। और इसमें क्या है, जब एवरी क्लिनिकल रिसर्च जब होती है, प्रोसीड करती है, तो उसमें केयरफुल असेसमेंट होती है, इनहेरेंट रिस्क होते हैं कंपैरिजन टू फोर्सिबली बेनिफिट्स टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट उसमें लिए जाते हैं, जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स उसमें लिए जाते हैं, उनकी विलिंगनेस से लिए जाते हैं, किसी को भी फोर्सली नहीं लिया जाता। ठीक है। ड्यूरिंग द क्लिनिकल स्टडी द एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड। उसमें क्या है, जब हम उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तो एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। द एब्जॉर्प्शन भी पर्टिकुलर ये हो जाता है, सपोज कि 10 पेशेंट्स हमने ले लिए हेल्दी, 10 पेशेंट्स ले लिए, थोड़े मतलब एज ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। एज ग्रुप वाइज डिवाइड हो जाएगा, उनको करेंगे कि भाई 10 पेशेंट्स ले लिए, उनको इतनी डोज, 5 को इतनी देनी है, 5 को इतनी देनी है। तो इस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट कर कर फिर उनमें ये प्रोसेस ड्रग का देखा जाता है कि वो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही है, मेटाबोलाइज कैसे कर रही है, एक्सक्रीट आउट कैसे कर रही है ड्रग उनमें से। ये क्लिनिकल ट्रायल्स में डिटेल में स्टडी की जाती है। और न्यू ड्रग, और अगर कोई न्यू ड्रग मार्केट में आ रही है तो क्या होता है, तब भी उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एफिकेसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर लिए जाते हैं विद उनके विलिंगनेस। ह्यूमन बीइंग मे मेटाबोलाइज रिस्पॉन्ड टू अ ड्रग इन अ मैनर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। क्योंकि ह्यूमन का जो रिस्पॉन्ड, ड्रग को रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, वो एनिमल्स से थोड़ा अलग तो है। ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी वेरिएशन बिटवीन पेशेंट एंड नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। उसमें क्या करते हैं कि कहा ना, कैटेगरी वाइज रखते हैं यार, 10 पेशेंट्स हेल्दी लेंगे, 10 सब्जेक्ट्स हेल्दी लेंगे, ह्यूमन सब्जेक्ट्स 10 लेंगे पेशेंट्स। ठीक है। फिर देखेंगे कि हेल्थी पर ये क्या इफेक्ट कर रही है और पेशेंट्स पे किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। द टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडी जो है ये आर सिनोनिम्स। क्लिनिकल ट्रायल भी क्लिनिकल स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी भी क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये सिनोनिम्स मान लीजिए आप इसको। द पर्पस ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स इंश्योर दैट द ड्रग मेडिसिन, मैंने कहा ना, इन क्लिनिकल ट्रायल्स का मेन मोटो क्या होता है कि जो मार्केट में या हम जैसे जो लेमैन हैं, हाँ, हमें ये हम इंश्योर रहे कि उनका मेन मोटो होता है कि जो मार्केट में पब्लिक है, जो ह्यूमंस हैं, वो इंश्योर हैं कि उनकी ड्रग मेडिसिन उन तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने टेस्ट करके गुजरती है, और दे आर सेफ टू इनटेक, इफेक्टिव एंड इनअप्रोप्रिएट डोजेज रेजिमेंट दैट डज नॉट कॉज सीरियस इलनेस नहीं दिखाएगी। तो ये उनकी तरफ से क्लिनिकल ट्रायल्स का ये मेन मोटो होता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग इज वन विच इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, दैट इज ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए जो है, वो क्या करते हैं, अभी उन्होंने येट अप्रूव नहीं किया इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को। इट कैन बी फार्मास्यूटिकल फॉर्म एंड एन एक्टिव इंग्रेडिएंट बी इन्वेस्टिगेटेड और स्टडीड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। पर जैसे कई बार इंसान सोचता है ना कि भाई जो क्लिनिकल ट्रायल्स वाली जो मेडिसिन है जो वहाँ ट्रायल हो रही है, क्या वो भी मार्केट में आ सकती हैं? नहीं। उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल्स नहीं निकाले हैं। इट कैन बी फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो ओके हैं तो उनको नहीं, सिर्फ वो वहाँ पे ट्रायल पर्पज से ही होती हैं। ठीक है जी। यूजिंग इन अदर फॉर्म्स
एज अर्ली एपिसोड फॉर इंजेक्शन इज नाउ टेस्टेड फ्रॉम ओरल कैप्सूल्स। किसी में कोई मतलब अलग अलग डोजेज फॉर्म के थ्रू ये ट्रायल पर्पसेस के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। ठीक है जी। अब मैंने जो आपको बताया ना विलिंगनेस से, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब सपोज किसी की सर्जरी हो रही होती है तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है कि इफ इन केस पेशेंट को कुछ हो जाता है उस सर्जरी के दौरान, तो हॉस्पिटल या वो प्रेमिसेस जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, उनसे भी एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट भरा फिल करवाया जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सब्जेक्ट और पेशेंट, मैंने बोला ना, सब्जेक्ट और पेशेंट जो है वो वॉलंटरली कन्फर्म्स हिज और हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल्स। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आना चाहे तभी वो वहाँ आ सकता है। उनसे कंसर्न फॉर्म भरवाया जाता है, फिल करवाया जाता है। आफ्टर हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रायल दैट आर रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट डिसीजन टू पार्टिसिपेट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज डॉक्यूमेंटेड बाय मीन्स ऑफ रिटन और साइन डेटेड। वो एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है उनकी तरफ से रिटर्न, कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म होता है वो फिल इसलिए करवाते हैं कि ताकि अगर कोई मेडिकल हैजर्ड्स हो जाते हैं, इफ इन केस रिसर्च के दौरान, या उस इफ इन केस उस क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान उस पर्टिकुलर पेशेंट की मौत हो जाती है, that it is the duty of the physician and the trial team to disclose all the risk। अपने रिस्क को बचाने के लिए, अपने हैजर्ड्स को बचाने के लिए, या नई ड्रग जब इन्वेस्टिगेशन, देखो जब नई ड्रग, सिंपल सी बात है, जब कोई नई ड्रग या इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं जब वो टेस्टिंग प्रोसेस में है कि वो गुड ही इफेक्ट दे। वो बैड भी दे सकती है, वो जान भी ले सकती है। ठीक है जी। उस केस में इन्फॉर्म्ड कंसेंट फिल करवाया जाता है। ठीक है जी। तो और ये कंसेंट फॉर्म इसलिए फिल होता है ताकि वो पर्टिकुलर जो क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट है वो उस चीज से वो बचे रहें। ठीक है। और पेशेंट्स को भी बिना, ऐसा नहीं है कि उन्हें फोर्सफुली वहां पे लाया जाए, वो अपनी मर्जी से आते हैं। In the investigational team, the doctor should be prepared to accept the moral and legal responsibility for any and all harm which may ensure before starting the studies। ये क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज से पहले ही स्टेप आउट लिए जाते हैं। कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड विद द वॉलंटियर पेशेंट्स। कोई पेशेंट वॉलंटियर हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, वो कंसेंट फॉर्म अपनी मर्जी से फिल करे। ठीक है। देयर शुड बी नॉट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स, फ्रॉड, डिसाइड एंड कंपल्शन। कल को क्या हो जाता है, इफ इन केस उसको कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आपने उसको, या फैमिली मेंबर हैं या वॉट एवर रिलेटिव्स हैं कि उसको जबरदस्ती लिया है। तो ये कंसेंट फॉर्म इसलिए फिल करवाया जाता है। वाई क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड। क्लिनिकल ट्रायल्स को करने की जरूरत क्या है, सबको पता है। अभी तक जो मैंने आपको इस सेशन में करवाया है, अभी तक जो आप क्लिनिकल ट्रायल्स की डिफाइन पढ़ा आपने, इसके बारे में इन कंसेंट फॉर्म पढ़ा, इनसे आप सबको आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स असेंशियल टू फाइंड, फिर भी मैं आपको रिकॉल करने के लिए बता देती हूँ। क्लिनिकल ट्रायल्स असेंशियल जरूरी होता है, क्यों? कि नई ड्रग्स जो हमारी हैं ह्यूमन बींग्स तक पहुंचे तो सेफ पहुंचे, सिंपल बात है। ठीक है। उससे पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं जिसमें क्या होता है, प्रिडिक्शन पे बेस्ड होती हैं कि यूज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, न्यू एजेंट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बेस पे उसकी इफेक्टिवनेस, डोज रेजिमेंट, साइड इफेक्ट्स। तो इसलिए उस चीज को ओवरकम करने के लिए और किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है जी। उसके टॉक्सिकोलॉजिकल कितने इफेक्ट्स हैं, ज़्यादा हैं तो उनको कैसे कम किया जाए, अगर इतने ज़्यादा है कि वो कोप अप नहीं कर सकते तो हम उसको वहीं पे बंद कर देते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। वहाँ केस में हमें ज़रूरी है। फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स पे अब हम आ जाते हैं। फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, आर जनरली कैरेक्टराइज्ड कैटेगराइज्ड इनटू 4 फेजेस। ये 4 फेजेस में होता है। ठीक है जी। अभी तक आपने क्लिनिकल ट्रायल्स का सब डिटेलिंग में पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं फेज।
फेज क्या, कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं? फर्स्ट 3 फेज कंडक्टेड बिफोर द अप्रूवल ऑफ ड्रग बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और द फोर्थ फेज, पहला फेज क्या है? ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जिसको हम फेज फर्स्ट कहते हैं। सेकेंड फेज है हमारा एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स। इनके बारे में थोड़ा केयरफुली सीखें, केयरफुली इस सेशन को ध्यान से सुने कि इसमें ये क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लें। एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स, कंफर्मेटरी ट्रायल्स, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ये फेज फोर्थ में होता है, जिनको फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहा जाता है। अब आ जाते हैं ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि टू डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इन ह्यूमंस, कि मैक्सिमम किसी ह्यूमन में कितनी डोज है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल स्टडी करने के लिए ये कुछ बिहेवियर्स हम लोग देखते हैं, ये स्टडीज की जाती हैं कि पहले तो हेल्दी एडल्ट वॉलेंटियर यूज, जो हेल्दी सब्जेक्ट्स हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं, एडल्ट वॉलेंटियर्स हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लिए जाए। उनका फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन, उन्हें कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा जाए। ठीक है, ये आपका फेज फर्स्ट हो जाता है कि जब हम किसी ह्यूमन सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। ठीक है, फेज फर्स्ट ट्रायल्स आर यूजुअली कैरिड आउट बाय इन्वेस्टिगेटर trained in a clinical pharmacology having the necessary facility to closely observe and monitor the subjects। जितने भी ह्यूमन वॉलेंटियर या ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उनको लिया जाता है, ये है आपका फेज फर्स्ट। ठीक है, फेज फर्स्ट स्टडी इज द फर्स्ट ट्रायल्स इन मैन। सबसे पहले तो उसमें हेल्दी हम लोग सब्जेक्ट्स लेंगे। ठीक है, उनको ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, उनका बॉडी फिनोमिना क्या है, वो उनको क्या चीज़ें, उनको नेसेसरी उनको चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी, वो मॉनिटरिंग पे रहेंगे एक तरीके से कुछ टाइम के लिए। ये आपका फेज फर्स्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं फेज सेकंड पे, जिसको एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर स्टडी केयरफुली टू डिटरमाइन पॉसिबल थेरेपेटिक एक्शन। मैंने बोला था ना आपको, पहले भी बताया था अभी में, कि कैटेगरी वाइज करते हैं, 5 को 10 ले लिए, 5 को इस जगह रखेंगे, 5 को इस जगह। तो वही चीज़ इसमें आ जाती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को, पर्टिकुलर एक लिमिट, यानी कि 10 या 5 हैं तो 5 को एक तरफ रखेंगे, 5 को एक तरफ रखेंगे। आज स्टडीड केयरफुली टू डिटरमाइन पॉसिबल थेरेपेटिक यूज को पढ़ने के लिए, उनके स्टडी करने के लिए हम लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स लेंगे। इफेक्टिव डोज रेंज क्या है? 10 से 12 पेशेंट should have been studied at each dose level। उनको एक तरीके का पैरामीटर दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टडी आर यूजुअली लिमिटेड टू 3-4 सेंटर्स, ये उनके 3 से 4 सेंटर्स में की जाएगी। 10 पेशेंट्स को एक जगह रखा जाएगा, एक जैसा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, एक जगह माहौल दिया जाएगा, खाना पीना रहना, और उनको उनके ऊपर एक तरीके से डोज, पहले तो उनकी बॉडी को फिनोमिना को स्टडी कर लिया, फिर उनको कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, कि फिर उन पे बिफोर ये स्टेप्स लेने से पहले उनको ये ऑब्जर्वेशन हो गए, उनको एक जगह पे रख दिया लिमिटेड पेशेंट्स लेकर। अब आ जाते हैं फेज थर्ड पे। इसमें क्या होता है? द पर्पस ऑफ दीज ट्रायल्स इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस अबाउट एफिकेसी। उसके बाद हम पेशेंट्स को जो ट्रायल के ड्रग्स हैं वो इनटेक करवाने लगे, उनका कंपैरिजन, स्टैंडर्ड ड्रग्स क्या हैं, एप्रोप्रिएट हैं नहीं है, ट्रायल्स क्या हैं, कंसर्न थेरेपेटिक एरियाज क्या हैं, हैविंग फैसिलिटी अप्रोप्रिएट टू द प्रोटोकॉल्स। इफ द ड्रग इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, अगर ड्रग अप्रूव्ड है बहुत सारी कंट्रीज में, तब उसके पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं। अगर कोई मार्केट में न्यू ड्रग है तो थोड़ा उसके ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पे। ये तो हो गया, आपने दवाइयाँ उनको दे दी, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, आपने पेशेंट्स को कैटेगराइज कर लिया, उनको मेडिसिन को इनटेक भी करवा दिया। अब आ जाते हैं सर्विलेंस पे, यानी कि सपोज जैसे होता है ना कि कोई मेडिसिन हमने ले ली, लेने के बाद क्या होता है, हम उसको, हम भी हैं, अगर मानो हेडेक ही हो रहा है, हम मेडिसिन ले लेंगे, हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मैक्स रुक जाएंगे। ठीक है, सर्विलेंस करते हैं ना एक तरीके से कि इफेक्ट हमें आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे ही इनको भी जब हम न्यू सब्जेक्ट्स, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को क्लिनिकल ट्रायल्स पे रखेंगे, हमने मेडिसिन इनटेक करा दी, फिर हम भी इनको सर्विलेंस पे रखेंगे। ठीक है, तो ये इनका सर्विलेंस तरीका हो जाता है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स,
कितने तरीके, वो तो आपने जो अभी पढ़ा वो फेसेस थे। ये आ जाते हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या आ जाता है? ट्रीटमेंट ट्रायल्स, प्रिवेंशियल ट्रायल्स, स्क्रीनिंग ट्रायल्स, सपोर्टिव ट्रायल्स। ट्रीटमेंट में जब आप नए सब्जेक्ट्स को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। प्रिवेंशन में अगर प्रिवेंशन ट्रायल्स डिजाइन टू फाइंड बेटर वे टू प्रिवेंट द डिजीज लाइक वैक्सीनेशन। हम डिजीज तरीके ढूंढते हैं कि डिजीज को क्योर करने के और अच्छे बेटर तरीके क्या हो सकते हैं। स्क्रीनिंग में मतलब कि हम सर्टेन डिजीज को ह्यूमन सब्जेक्ट्स में स्क्रीन करते हैं, कोई है नहीं है, क्या इफेक्ट है। सपोर्टिव ट्रायल्स का मतलब हो जाता है, सपोर्ट ट्रायल्स आर एम टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग वेज टू इम्प्रूव कंफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी। ओपन ट्रायल्स में क्या हो जाता है? Role play in initiating study of particular therapeutic diagnosis. In open studies, all the participant trials जो हैं वो इसमें जो भी ओपन ट्रायल्स का मतलब होता है, जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स उन्हें सब पता होता है। ठीक है कि आपके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है, ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, उन्हें सब चीज़ों से अवेयर कराया जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ओपन अप किया जाता है। इट हेल्प टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ द ड्रग वर्क्स, इफेक्ट डोज क्या है, रिस्क क्या है। उनको ये भी बताएंगे कि मार्केट में हम डोज लेके आ रहे हैं, आप पे हम लोग ट्रायल करेंगे, इसका इफेक्ट गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। कंट्रोल ट्रायल्स में क्या होगा? द पेशेंट विल ग्रुप इनटू टू। मैंने बोला ना कंट्रोल ट्रायल्स कि 10 पेशेंट एक जगह, 10 पेशेंट एक जगह। वन ग्रुप विल हैव द ट्रायल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द न्यू सब्सटेंस। एक को न्यू सब्सटेंस वाले डोजेस देंगे, दूसरों को इन्वेस्टिगेशनल एजेंट के अंडर रखेंगे। ठीक है। तो एक तरीके से कंट्रोल्ड ग्रुप हो जाता है। एज, साइज, सेक्स, हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंशिएट किया जाएगा और फिर उन पे एक्शन के, फिर उन पे नए ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं मॉनिटरिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। मॉनिटरिंग में क्या, जब हमने उन्हें दवाई दे दी, क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर एंड साइंटिफिक, इट इज एसेंशियल टू हैव मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर इट्स कंडक्ट। वेरियस फैक्टर लाइक एथिक्स, सेफ्टी, कंप्लायंस, रेगुलेशन। हम इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पेशेंट्स को मॉनिटर करेंगे और उन पे क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम जो हमने किया है उसको गवर्नेंस की हेल्प से उनके नॉलेज में रख के हम मॉनिटरिंग करेंगे ट्रायल्स पेशेंट्स को। पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड रिगार्डिंग द स्टडी। उनको हर चीज़ मैंने कहा ना, ओपन ट्रायल का हर चीज़ उनको बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि उन्हें हम किसी अंधेरे में रखेंगे। When a new drug is tested, extra care has to be taken to ensure the timely identification, notice of adverse effect. उनको नोटिस करने, एडवर्स इफेक्ट नोटिस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन नोटिस करेंगे कि क्या ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स पे। क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रायल स्टडी ऑफ एनी थेरेपेटिक प्रोफाइलेटिक डायग्नोस्टिक एजेंट कंडक्टेड इन ह्यूमन एजेंट्स। ठीक है जी। फिर उनकी रिपोर्ट्स भी बनती हैं। अब आ जाते हैं जीसीपी में, यानी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। व्हाट इज दिस? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर द डिजाइन, परफॉर्मेंस, monitoring, auditing, recording, analysis, reporting of clinical trials that provide assurance that the data and reported results are credible, accurate, that the rights, integrity, confidentially trial subjects are protected. ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज योर समराइज द बायोअवेलेबिलिटी? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल इवैल्यूएशन के थ्रू असेसमेंट क्या होती है ड्रग इफेक्ट प्रोडक्ट की, वो सब आप जनरली इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है जी। बायोइक्विलिटी क्या होती है, बायोइक्विलेंस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली जनरली आपके लिए ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज बायोफार्मास्यूटिक्स? बायोअवेलेबिलिटी। इंपॉर्टेंस क्या है बायोइक्विलेंस की? मेजरमेंट कैसे होती है? एक्सप्लोरेटरी ट्रायल किसे कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में जरूर देखो, इसके जितने ट्रायल्स है वो देखो। ठीक है जी। और इसी के साथ आपकी ये यूनिट जो है, ये मेरी साइड से यूनिट 6 आपकी ओवर हो जाती है। ठीक है जी। इसी के साथ आपकी यूनिट 6 ओवर हो जाती है। अब हम इस नेक्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं। ठीक है। आप 5 मिनट्स इसे रिवाइज कीजिए, मैं 5 मिनट्स बाद बैक आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलती हूँ। गैस पे गरम कर
चलिए जी, इसके साथ हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 7 बायोफार्मास्यूटिकल्स। इसमें आप जनरली पढ़ेंगे व्हाट इज बायोफार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, डीएनए ट्रांसफर क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसे कहते हैं, ये सब आप इस जनरली यूनिट में कवर करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट यूनिट में आपने क्या क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ा है, बायोअवेलेबिलिटी बायोक्लिनिक्स के बारे में पढ़ा है। क्या कोई मुझे बताएगा कि बायोअवेलेबिलिटी बायोक्लिनिक्स क्या होता है? क्या एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बायोक्लिनिक्स बायोअवेलेबिलिटी? डियर स्टूडेंट्स, tell me the what is bioavailability bioequivalence. Okay, no response from anyone. Shall we start unit 7? Let's start it. लास्ट यूनिट में आपने पढ़ा है बायोअवेलेबिलिटी बायोक्लिनिक्स किसे कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। इसमें आप पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिकल कब आया था, जनरली 1982 में आया था। रिकम्बिनेंट इंसुलिन जो है थेरापेटिक यूज, फर्स्ट बायोफार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो था, जो अप्रूव करा गया था, वो था रिकम्बिनेंट इंसुलिन, जो 1982 में आया था। ठीक है जी। इसमें क्या है, आप बायोफार्मास्यूटिकल रेफर टू प्रोटीन और न्यूक्लियाई एसिड बेस्ड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर थेरेपेटिक इन विवो डायग्नोस्टिक पर्पसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल बायोलॉजिकल सोर्सेज से। कैसे मिलता है? Monoclonal antibodies are used in the manufacture of genetically engineered protein, genetic engineer, as they isolated the desired protein product, so it can be separated from the jumble of molecules surrounded monoclonal antibodies, or also from the key development of newer types. अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, इसके क्या हैं? डिफाइन फार्मास्यूटिकल, मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं, चलिए लिस्ट प्रोडक्ट मेथड, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मैप भी बोलते हैं इसको, हाइब्रिडोमा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। चलिए जी, बायोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। यू 1980 में ये वो टर्म आई थी, therapeutic protein produced by biotechnological methods such as genetic engineering, hybridoma technology. The first such substance approved for therapeutic use for recombinant insulin. Generally, the term biopharmaceutical refer to protein or nuclei-based biopharmaceutical substance used for therapeutic in vivo diagnostic purpose, which are produced by direct extraction from natural biological sources. The term biological means bioceutical प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजिकल ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड। ठीक है जी। अब आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल। इसमें क्या हो जाता है, ये आप पिक देख रहे होंगे, प्रोसेट ट्रीटमेंट ऑफ इनीमिया, एप्रोजन ट्रीटमेंट ऑफ इनीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रॉन ए जिसको इंटरफेरन अल्फा भी बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। अब आ जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। The ability or to selective hydrolyze a population of DNA molecules with number of endonucleases promoted. The technique of joining two different DNA molecules together termed recombinant DNA technology. चलिए जी, इसमें ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स पर। क्लोनिंग क्या होता है? अ नंबर ऑफ वायरसेस हैव बीन यूज्ड बाय वेक्टर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल वायरसेस, इंसेक्ट वायरसेस एंड मैमलियन retroviruses. Most commonly used bacterial viruses in bacteriophage. Retroviruses are RNA viruses that contain reverse transcriptase, which catalyze the conversion of viral RNA genome into DNA. Retroviruses is commonly used to clone DNA in the mammalian cell. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं आपके? अनदर कॉमनली यूज बैक टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते रहते हैं होस्ट सेल से, which is to be cloned, inserted into the plasmid containing an antibiotic resistant gene. Resistant gene inserted into plasmid bacteria and reduce the class enzymes. अब आ जाते हैं आइसोलेशन एंड क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स पे। इसमें क्या हो जाता है, इसको आप देखो, कुछ समझ में आता है तो
As DNA molecules are longer, as DNA molecules are longer, linear fragile shape में होते हैं, नेचर fragile nature में होते हैं, they can be easily segmented by passing the DNA suspensions through a syringe needle. ठीक है जी. DNA can also be segmented on the basis of their charge, size, influence of rapid applied electrical field. इसमें क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड डीएनए होते हैं ना हमारी, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से सेपरेट किए जाते हैं. फिर इसमें फर्स्टली इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर, cloned in the electrophoresis, the molecules are separated on the basis of their charge. Molecules जो है हमारे सेपरेट होते हैं चार्ज के बेसिस से. रिस्ट्रिक्शन चार्ज के बेसिस से ये सेपरेट हो जाते हैं हमारे और segments indicated with appropriate vectors plasmid to form recombinant molecules. सेपरेट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ठीक है जी. the DNA transfer पर the recombinant DNA to be cloned. recombinant जो DNA होते हैं ना वो क्लोन हो जाते हैं और ये कैसे इंसर्ट होते हैं, हॉस्ट सेल में इंसर्ट होते हैं जिनको हम बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं. ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसका कोई केमिकल नहीं होती है. एंड द फिजियोलॉजिकल कंडीशन एज इन द केस ऑफ बैसिलस सबटाइटलिस, the certain microbial cell have to be forced to take up the DNA by unusual regimen like heat shock in the presence of calcium ions. By electroporation, DNA molecule and cell are taken in the cuvettes and subjected to high electric discharge, which causes opening of the cell envelope, creates holes through the DNA molecules may enter. अब आ जाते हैं बायोफार्मास्यूटिकल सोर्सेज पर. मोस्ट ऑफ द मार्केटेड रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकम्बिनेंट Escherichia coli from its recombinant mammalian cell lines. This kind of method used with the help of introduction of gene or DNA. या तो जो मार्केट में रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स आते हैं ना, वो क्या होते हैं, या तो इस चीज से बने होते हैं Escherichia coli से, और या फिर रिकम्बिनेंट mammalian सेल लाइन्स से बने होते हैं. तो ये जनरली किस में यूज होते हैं, जीन्स को इंट्रोड्यूस कराने में या cDNA कोडिंग के लिए ये जनरली यूज किया जाता है, जिनको हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स कहते हैं. अब आ जाते हैं ये सोर्सेज हमें मिलते कहाँ से हैं. ये सोर्सेज हमें मेजर सोर्सेज ऑफ थेरेपेटिक एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्निक्स. इन टेक्निक से हमें जनरेट मिलते हैं. इनके मेन सोर्सेज क्या होते हैं, फंगी, यीस्ट, इकोलाई, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल सेल कल्चर, इंसेक्ट सेल कल्चर, प्लांट बेस्ड सिस्टम्स. ठीक है जी. ये इसमें होते हैं, इनके इस तरीके से ही हमें मिल जाते हैं. ये जनरली आप पढ़ोगे तो ये आपको आ जाएगा. अब आ जाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर. ये क्या होती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जिनको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होती है. They isolate the desired protein product. It can be separated from the jumble of molecules surrounding it. Monoclonal antibodies are also the key for development of newer type of vaccines. With growing experience, scientists have devised several sophisticated variants of the mAb, जिसको हम monoclonal antibodies बोलते हैं. For instance, they have created some monoclonal antibodies of humans other than the usual mouse origin. ठीक है जी. ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन यूज्ड इन थेरेपी विदाउट रिस्किंग एन इम्यून रिएक्शन दैट अकर्स टू द माउस प्रोटीन. इसमें क्या होता है, जनरली जैसे माउस को या पर्टिकुलर इसको एंटीबॉडीज यूज की जाती हैं बाय स्प्लिटिंग द माउस जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली स्पेसिफिक एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी. ये इसके जीन्स जो होते हैं ना, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं. अब आ जाते हैं इसमें कितने तरीके के सेल होते हैं. मोनोक्लोनल बीटा सेल्स होते हैं जो आप जनरली पढ़ोगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ मैप्स हो जाते हैं, मोनोस्पेसिफिक मैप, बायोस्पेसिफिक मैप, काइमेरिक मैप. इसमें जनरली ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, द नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. ठीक है. अब आ जाते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर.
हाइब्रिडोमा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाइब्रिडोमा क्या होता है, इज डिफाइंड एज हाइब्रिड सेल, जो एक सेल नहीं बहुत सारे सेल से हाइब्रिडाइज हो जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग lymphocytes with tumor cells and used to culture continuously a specific monoclonal antibodies. Due to hybridoma technology, scientists are now able to obtain quantity substance secreted by cells by the immune systems. ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इनका प्योर और यूनिफॉर्म क्रिएटिंग एंटीबॉडीज मिलती है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन. हाइब्रिडोमा इज क्रिएटेड बाय यूजिंग फ्यूजिंग टू सेल्स secreting cells from the immune system. अब आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर. हाइब्रिडोमा टेक्निक यूजफुल, ये बहुत यूजफुल टेक्निक है, एप्लीकेबल है आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए. ठीक है, फॉर एफिनिटी प्योरिफिकेशन, ट्यूमर इमेजिंग, इम्यूनोडायग्नोस्टिक एंड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आजकल इस तरीके की टेक्निक्स लाई जा रही हैं ताकि कैंसर को ट्रीट किया जा सके. दे कैन बी यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग एज वेल एज प्रिडिक्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द सिक्रीशन इन एंटीबॉडी production system. Critical factors in production of hybridoma is the preparation of cells for fusion. The steps are involved are mice are given by IV. इसमें क्या कुछ पर्टिकुलर वही है, एनिमल्स लिए जाते हैं, इससे माइस ले लिया, ठीक है, प्लाज्मा सेल इन सेल कल्चर में मेंटेन कर लिया, फ्यूजन सेल डाइल्यूट कर लिया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया. हाइब्रिड आर सिलेक्टेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी ऑफ इमीडिएट इंटरेस्ट. तो इस तरीके से कर लिए जाते हैं. अब इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक्स. अब आ जाते हैं समराइज पर. ठीक है, आपने इसमें क्या पढ़ा, इसमें आपने ये पढ़ा कि बायोफार्मास्यूटिकल कब मार्केट में आया था, डिलीवरी सिस्टम्स इन द ड्रग डिलीवरी और थेरेपेटिक के लिए क्या क्या मार्केट में न्यू टेक्निक्स आए, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या थे. ठीक है, जो आपने जनरली इन जो आज के सेशन में आपने पढ़ा है. क्लिनिकल ट्रायल्स क्या थे, बायोफार्मास्यूटिकल क्या था, ह्यूमन यूज़ क्या थे, मैब्स क्या था, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स पे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें. ठीक है, ये जनरली आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. देखो ये है ना, डिफाइन हाइब्रिडोमा हो गया, डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के स्टेप्स क्या होते हैं, ये जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं. ठीक है नहीं. इसी के साथ ये आपकी यूनिट 7 इस सेशन में कंप्लीट हो रही है. ठीक है जी. अब इसमें 5 मिनट्स तक ये जो है यूनिट अपनी ये देखो, मैं आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलती हूँ. चलिए जी, शुरू करते हैं यूनिट 8. ठीक है जी. इसमें आप जनरली क्या पढ़ेंगे, कॉस्मेटिक कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है कॉस्मेटिक के. ठीक है, नील कॉस्मेटिक, टूथ डेंटल प्रोडक्ट्स, इसके बारे में जनरली आप इसमें पढ़ेंगे. जनरली मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. ये जो पर्टिकुलर आपकी यूनिट है कॉस्मास्यूटिकल है. जैसे आपने अभी तक फार्मा का पढ़ा है ना, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रा में अगर कोई आ जाएगा तो वो न्यूट्रास्यूटिकल होगा. ऐसे ही आप कॉस्मेटिक को की स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्मेटिस्यूटिकल. मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मार्केटिंग ऑफ ऑल द कॉस्मेटिक नोन एज कॉस्मेस्यूटिकल. द कॉस्मेटिक्स आर डिफाइंड इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू ये भी आते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, क्या मीनिंग क्या होता है, रब, पोर, स्प्रिंकल्ड एंड स्प्रेड इंट्रोड्यूस्ड इनटू अदरवाइज human body or any a part of their cleansing.
ब्यूटीफाइंग किसी भी पेशेंट नहीं कह सकते, इसमें जनरली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ब्यूटीफाई करने की, अट्रैक्टिवनेस की तरफ प्रमोट करने के लिए कॉस्मेटिकल का जनरेट हुआ है, कॉस्मेटिकल मार्केट में आया है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स है, सबको कॉस्मेटिक वर्ड से ही सबके माइंड में क्रीम लोशंस आ गए होंगे, लिपस्टिक्स हो गए, फेस पाउडर्स हो गए, सबको पता है। कॉस्मेटिक are covered over the counter products, कॉस्मेटिक में ऑल ओवर प्रोडक्ट्स का कवर हो जाती हैं आपकी। ठीक है, और सबको पता है उनका, मुझे कोई और डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं। इसमें आप जनरली पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक क्लासिफाई, assess the importance of cosmetics and its history। कॉस्मेटिक जो है हमारा वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिकोस होता है, ये जनरली ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका मेन मोटो क्या होता है कि किसी भी अपीयरेंस को लेकर कॉस्मेटिक मार्केट में आया है, आई टू अडॉर्न वन ऑन बॉडी, लुक्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, ये सब आया है। इसमें अब आप पढ़ो कॉस्मेटिक्स का, ये तो पढ़ लिया आपने, कहाँ से ये वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ है, कॉस्मेटिक होता क्या है, ये सब आपने। अब आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक कितनी कितनी क्लासेस का होता है, कॉस्मेटिक फॉर स्किन, कॉस्मेटिक फॉर हेयर, कॉस्मेटिक फॉर नेल्स, कॉस्मेटिक फॉर हाइजीन। ठीक है, इतने ग्रुप्स में जनरली क्लासिफाइड है। अब आइए, आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये साइकिल दिख रही होगी, इसमें क्या है, आप जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक देख पा रहे हैं, जिसमें मैंने बोला ना, स्किन के लिए क्या है, कॉम्पैक्ट पाउडर, सबकी लेडीज के पास होते हैं फेस पाउडर्स, क्रीम्स होती हैं, लोशंस होते हैं, कलरेंट होते हैं, हेयर कलर्स देखे होंगे सबने, या लिपस्टिक रॉन्जेस देखे होंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या, फेस पाउडर मैंने बताया आपको, पर्टिकुलरली पाउडर हो गए, क्रीम्स में क्या होगा, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, पर्पस क्रीम। ठीक है, लोशन में स्किन लोशन, एस्ट्रिंजेंट लोशंस। ठीक है, हेयर्स में आपके जनरली क्या आ जाएंगे, शेविंग प्रिपरेशन जो सबने देखी है, शैम्पूज, हेयर लोशन, हेयर डाइज, हेयर कंडीशनर्स। ठीक है, और ये आपका, ये आ जाते हैं आपके नेल्स में, नेल लैक्वर, नेल पेंट, नेल पॉलिश, क्यूटिकल रिमूवर्स। हाइजीन डेंटल प्रिपरेशन में टूथ पाउडर, पेस्ट, डेंटिफाइज, माउथ वॉश, गार्गल्स। ठीक है, ये आपके जनरली कॉस्मेटिक्स में आ जाएंगे। कॉस्मेटिक आपके इतनी टाइप से क्लासिफाई है। अब आइए, जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कॉस्मेटिक, क्लासिफाई द कॉस्मेटिक यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्किन पे। स्किन की सबको पता है, स्किन की लेयर्स के बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, उन लेयर्स पे हेयर फॉलिकल्स हैं, ये आप डायग्राम देख पा रहे होगे, डायग्राम ऑफ स्किन का। इसमें आप देख सकते हो कितने लेयर्स है, सबक्यूटेनिक लेयर्स है, फैटी टिश्यूज है, डर्मिस है, लिविंग डर्मिस है, एपिडर्मिस है, स्ट्रेटम कॉर्निया है, हेयर्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये सबको पता है, स्ट्रेटम एपिडर्मिस, स्ट्रेटम कॉर्निया, स्ट्रेटम इंडिकम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, ये इतनी आप टाइप्स की आपकी डर्मिस स्किन की लेयर्स हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ, हम जनरली कॉस्मेटिक के बारे में सेशन में करेंगे कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक में क्या है, कि कितने टाइप के आ जाते हैं, फेस पाउडर, बॉडी पाउडर, जो आप जनरली यूज करते हो, स्किन कलरेंट्स, लिपस्टिक, रॉन्ज, वेरियस बॉडी क्रीम्स जो आपकी हो जाती हैं। फेस पाउडर में क्या है, दीज आर कॉल्ड फेस पाउडर, इट इज अप्लाइड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Powder and compact are one of the important category of skincare products. The body powder are also known as dusting powder भी बोल सकते हैं उनको हम, talcum powder भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो जनरली फेस पर यूज होते हैं। Certain medicated powders are mixed with active medicament to prevent microbial growth on skin. Deods होते हैं, फूड पाउडर्स होते हैं, आपके फेस पाउडर्स होते हैं, जिनकी अपनी अब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है, स्किन पे स्प्रेड हो जाते हैं, स्किन को सुंदर दिखाते हैं, अट्रैक्टिव दिखाते हैं, स्मूथ फीलिंग होती है, बाइंडिंग एजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, लूज केक भी होते हैं। अब आप देख सकते हैं फेस पाउडर का यूज क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्किन कॉलरेंट्स पर। These are applied to skin on the face. स्किन कलरेंट का मेन मोटो क्या होता है, ये जनरली या तो स्किन पे भी यूज होते हैं। ठीक है, या जनरली सभी की लेडीज के पास, या सभी लेडीज के पास लिपस्टिक्स होती हैं,
ये आप जनरली माइंड में देखो, या कलरेंट आता है ना, वहाँ आप लिपस्टिक्स को माइंड में रखो। लिपस्टिक्स क्या होती है? कलर इम्पार्ट करने का काम करती है, यानी कलर देने का काम करती है, ठीक है। ग्लॉसी होती है, मॉइस्ट अपीयरेंस होती है लिप्स पे, मॉइस्ट अपीयरेंस देते हैं। दे आर बेसिकली डिस्पर्सन ऑफ कलरिंग मैटर इन अ बेस कंसिस्टिंग ऑफ सुटेबल ब्लेंड ऑफ ऑयल। बहुत सारे ऑयल, फैट और वैक्सेस को मिलकर ये लिपस्टिक्स तैयार की जाती हैं, ठीक है, या लॉन्जेस तैयार किए जाते हैं। ये जनरली बहुत सारे कलर्स में होते हैं, पेल, पिंक, ब्लू, रेड, रेडिश, ब्राउन, इतने कलर्स में मार्केट में आता है, और ये सबको पता भी है, ठीक है। कलर हो गए, टिंट, तो आजकल सुने होंगे पर्टिकुलर वर्ड, पर एडिंग आयरन ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक पिगमेंट्स के थ्रू मार्केट में आजकल टिंट्स भी आ रहे हैं। और क्रीम्स कितने तरीके की आ रही हैं ये? क्लिनजिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम, मसाज क्रीम। फाउंडेशन क्रीम को आप वैनिशिंग क्रीम भी बोल सकते हो। जो डार्क सर्कल्स होते हैं या अपनी स्किन पे कुछ इम्प्रॉपर स्किन होती है, उसको वैनिश करने के लिए पर्टिकुलर वैनिशिंग क्रीम्स आती हैं। मसाज क्रीम्स होगी, बॉडी क्रीम्स होगी, सनस्क्रीन क्रीम्स होगी। क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है? दीज आर अप्लाइड टू रिमूव फेशियल मेकअप को रिमूव करने के, या फेस की गंदगी को निकाल, ग्राइम और सरफेस में ग्राइम को निकालने के लिए, मिट्टी मैंने कहा ना, गंदगी को निकालने के लिए क्लेंजिंग क्रीम का यूज किया जाता है। क्लेंस का मतलब क्लीन से ही समझ पा रहे होगे आप, क्लेंस करना, कोई ऐसी प्रिपरेशन जो हमारी स्किन के डस्ट को, डर्ट को क्लीन कर रही है, क्लेंस कर रही है, दैट इज कॉल्ड योर क्लेंस क्रीम, ठीक है जी। अब आ जाते हैं वैनिशिंग क्रीम में। क्या हो जाता है? मैंने कहा ना, वैनिशिंग यानी वैनिश यानी गायब कर देना किसी चीज को। दीज क्रीम्स विच डिसअपियर व्हेन अप्लाइड एंड रब इनटू द स्किन। They provide emollient protective actions. क्रीम लीव्स और ड्राई, ताकि रेजिडुअल फिल्म जो होती है ना एप्लीकेशन की, ये सब जनरली इसमें आ जाती है। फाउंडेशन क्रीम डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए, गायब करने के लिए वैनिशिंग क्रीम्स आती हैं। मसाज क्रीम्स का क्या हो जाता है? ब्लड मसाज क्रीम्स भी आजकल सभी फेशियल वगैरह करवाते हैं, या विटामिन की कई बार हमारी स्किन पे कमी हो जाती है, तो उसमें मार्केट्स में बहुत सारी मसाज क्रीम्स आते हैं, जिनसे मसाज करेंगे तो वो ठीक कर देती है, ठीक है। बॉडी और ऑल पर्पस कोल्ड क्रीम होगी, इन पर्पस के लिए भी मार्केट्स में क्रीम आ रही है। अब आ जाते हैं सनस्क्रीन प्रिपरेशन पे। द सन रेज से बचने के लिए बहुत सारी मार्केट में प्रिपरेशन आती हैं, जिनमें कि सनस्क्रीन क्रीम, लोशंस यूज किए जाते हैं। क्यों? यूवी रेज से बचने के लिए, सबको पता है, सब यूज भी करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कॉस्मेटिक फॉर हेयर्स पे। बिफोर गोइंग टू कॉस्मेटिक फॉर हेयर्स, लेट अस ब्रीफ डिस्कशन ऑन हेयर। हेयर क्या होता है? हमारा सबको पता है, बॉडी के में से, वाइटल पार्ट में से निकल के, हेड से निकल के आते होते हैं। मैं आपको हेयर्स का वो भी बता देती हूँ कि भाई हेयर्स पे प्रिपरेशन क्या है। शैम्पू सबको पता है, क्लीन करने के काम आता है, बालों को चमक देने के काम आता है, कंडीशन करने के काम आता है, ठीक है। इसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर शैम्पू, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैम्पूज, ठीक है जी। हेयर कलरेंट्स, गुड हेयर ऑन द हेड इम्प्रूव्स ऑल ओवर द ब्यूटी, पर्सनैलिटी। हेयर कलरेंट क्या होता है? आजकल सबको सब जानते हैं कि ओल्ड एज हो गए, नॉर्मल यंग जनरेशन हो गई, या हम लोग बहुत छोटे बच्चे तो नहीं, मैं कह सकती 50 टीन एज हो गए, ओल्ड एज हो गए, या हम जैसे मिड एज वाले हो गए, हेयर कलरेंट सब अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से हेयर्स को एलिगेंट दिखाने का एक तरीका हो जाता है। हेयर ग्रूमिंग एड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। हेयर क्रीम, हेयर सेटिंग लोशन, हेयर स्प्रेस, तो एक तरीके से हेयर ग्रूमिंग होते हैं वो। प्रिपरेशंस मार्केट में आते हैं। शेविंग प्रिपरेशन हो गई, शेव सब करते हैं, सबको पता है शेविंग क्रीम्स किस लिए यूज किए जाते हैं, सोप्स किस लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आफ्टर शेव लोशन। जब शेविंग हो जाती है उसके बाद बहुत सी ऐसे जेंट्स हैं या मेल्स हैं जिनको इरिटेशन हो जाती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आफ्टर शेव लोशन यूज़ किया जाता है, ताकि सेप्सिस ना हो, सेप्टिक ना हो, ठीक है। नेल कॉस्मेटिक आ जाती है, सबको पता है, सबके ड्रेसिंग टेबल्स में होते हैं, नेल पेंट्स होते हैं, नेल कलर्स होते हैं, नेल एक्वर्स होते हैं, ठीक है। ये कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलकर बनता है, ठीक है। टूथ एंड डेंटल प्रोडक्ट होगी। गुड डेंटल हेल्थ इज अ सिंपल ऑफ गुड जनरल हेल्थ। दांत अच्छे होंगे तो स्माइल अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस टीथ की होना बहुत जरूरी है। ऑरल कैविटी ना हो, हमारे गम्स अच्छे रहें, गुड हेल्थ रहे, गुड शाइनिंग टीथ इंप्रूव द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन। चमकते दांत लोगों की पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं, सबको पता है।
टूथपेस्ट, टूथ पाउडर किस लिए यूज होते हैं? टूथ की डीके को, डेंटल प्लेक, टूथ डीके, रिड्यूस माउथ ऑर्डर, फ्रेशनेस फैलाने के लिए ये टूथ पाउडर, टूथपेस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। जिनमें जनरली मार्केट में क्लोव ऑयल, लौंग के तेल वाले पेस्ट बहुत आते हैं। माउथ वॉश, गार्गल, मैं लास्ट यूनिट में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुंह को फ्रेश करने के लिए, ऑरल कैविटीज से इंप्रूव करने के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचने के लिए ये प्रिपरेशन मार्केट में आई है। ठीक है, अब आ जाते हैं समरी में। आपने आज में क्या किया? आपने आज में कॉस्मेटिक के बारे में जाना, कॉस्मेटिक की क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना, कितनी तरीके के प्रिपरेशन मार्केट में आते हैं ये जाना, बाथिंग सोप क्या होते हैं, शैम्पूज, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ये सब आपने इसमें जाना। ठीक है, ये जनरली आपको मैं कुछ कीवर्ड से फैमिलाइज करा रही हूँ। डेंटिफाइज क्या होते हैं, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं सुने तो आप इनसे अनफैमिलियर ना रहें। ये डेंटिफाइज होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि डेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के काम है। ठीक है, फाउंडेशन क्रीम, दीज आर द एजेंट्स अप्लाइड टू द स्किन टू प्रोवाइड स्मूथ इवोल्यूट बेस। स्किन को प्रोवाइड करने के लिए फाउंडेशन क्रीम्स आती हैं। रॉक्स क्या होते हैं? Rogers, these are the preparation applied to cheek to give a color cheek. चीक्स को कलर प्रोवाइड करने के लिए रॉजेस मार्केट में आते हैं। पीच लाइक फिनिश यानी कि फेस पाउडर जो कि पीच लाइक फिनिश हमें दे, दैट इज कॉल्ड पीच लाइक फिनिश। रोस्टेड लुक, मेटालिक पाउडर, कंडीशनर, हेयर सेटिंग लोशन से मार्केट में आते रहते हैं, सबको पता है इनके बारे में। ठीक है, अब इनके जनरली क्वेश्चंस क्या क्या पूछ लिए जाते हैं? राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्मेटिक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। मैंने आपको जनरली क्लासिफिकेशंस में ये बताया है। ठीक है, ये आप जब इस यूनिट को इस सेशन में देखेंगे तो आप इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है जी, आज में आपने 5, 6, 7, 8 ये 3 यूनिट्स कवर की हैं और 5 को 5th यूनिट मैंने आपको रिकॉल करवाई है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any unit, then please ask the question. I will rectify as soon as possible. Dear students, if you have query in the unit 8 cosmeceutical, then please ask the questions. मैम फार्माकोडायनामिक के इफेक्ट मैम थोड़ा सा फार्माकोडायनामिक के लिए ठीक है, मैं आपको, आप वेट कीजिए नीलेश जी, 5 मिनट्स के लिए मैं आपको बताती हूँ। फार्माकोडायनामिक्स में इतना पजल होने की जरूरत नहीं है। फार्माकोडायनामिक्स में आपका क्या है कि आप जो किसी भी ड्रग या डोजेज फॉर्म होती है ना, यस मैम, हाँ, फार्माकोडायनामिक्स में क्या हो जाता है, जो आपकी नीलेश जी जो कोई डोज है ना, कितनी अमाउंट में बॉडी में जाके इफेक्ट कर रही है, वो ही हमारा फार्माकोडायनामिक्स होता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से नीलेश जी कुछ पूछना हो तो आप बताएं। और किसी को कोई क्वेश्चन अराइज करना हो? मैम मॉलिफिकेशन लिखा हुआ है कॉस्मेटिक वाले में, मैम मॉलिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन, एक मिनट में आपको बताती हूँ। कौन सा पॉइंट पे कह रहे हैं नीलेश जी आप, जरा मुझे बताइए। मैम कॉस्मेटिक में मतलब कि आप शुरुआत में पढ़ा रही थी मैम, तो उसमें हाँ 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 हाँ, एक सेकंड में जा रही हूँ मैं, उसी पे देख रही हूँ कहाँ पे आप कह रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल रहे हैं आप। किधर आपने कहाँ बोला मुझको, बताओ। मैम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक मैम जब था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लासिफिकेशन से समझना है आपको। हाँ, एक सेकंड मैम ये हाँ ये जो ये मैम देखिए लास्ट में मैम ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैम और थोड़ा सा मैम नीचे करिए, ऊपर करिए मतलब। एक सेकंड, कहाँ, ये कॉस्मेटिक और हिस्ट्री के बारे में जानना है आपको?
हाँ मैम, इसी में लास्ट में मैम पैराग्राफ में मतलब मॉडिफिकेशन मतलब लिखा, तो उसका मतलब हाँ मीन्स मतलब थोड़ा सा नहीं समझ पाए थे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। यस मैम, ये इसी में लिखा है। ये कॉस्मेटिक लास्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसमें क्या होता है जनरली, नीलेश ये समझिए कि जो कॉस्मेटिक है सबको पता है, एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई होती है, ठीक है। या मैम। एक्सटर्नल बॉडी, हाँ, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई होती है, ठीक है। और ये किन किन टाइप्स के लिए बनी है, स्किन के लिए भी बनी है, सबको पता है, हेयर्स के लिए भी बनी है, नेल्स के लिए भी बनी है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, कवर करने का। जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं ना, स्किन पे हो गए, कॉस्मेटिक का काम ही कवर करना होता है, ठीक है। अगर हेयर कलर्स है, कलजिंग देंगे, ठीक है। अगर हमारी स्किन रफ है तो सॉफ्टनिंग देगी क्रीम्स, ठीक है। अगर हमारी स्किन गंदी है या डस्ट है उस पर, तो जो क्लींजिंग क्रीम होगी क्लींस करने का काम करेगी, ठीक है। अगर नॉरिशिंग जो है वर्ड, अगर हमारी स्किन पे या हमारे कहीं भी बॉडी पार्ट पे जो भी डिसऑर्डर होगा उसको नॉरिश करने का सिंपल एग्जांपल अब नॉरिशिंग से समझना, कि जैसे अब हमारी स्किन है, विंटर सीजन है, ठीक है, ड्राई रहती है, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा दोगे तो क्या होगा, मॉइस्चराइज हो जाएगी, नॉरिश मिल जाएगा ना स्किन को, ठीक है। और वेविंग है तो जो जैसे बाल हो गए, बहुत से लोग जेल अप्लाई करते हैं सेट करने के लिए, ठीक है। सेटिंग स्प्रेज आते हैं। मॉलिफिकेशंस का मतलब हो जाता है आपका कि जैसे इसमें एक सेकंड में आपको बताती हूँ मॉलिफिकेशन में। एक कंफर्ट जोन देना नीलेश जी, ठीक है जी। ओके मैम, ओके। स्किन पे एक जब कंफर्ट जोन आता है ना, मैंने कहा ना सिंपल, जो कॉस्मेटिक का काम होता है कवर करना, जो हमारी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जहां भी हैं, मॉलिफिकेशन का काम, मॉलिफिकेशन का भी यही मतलब होता है कि जहां पे हमें नॉरिश चाहिए, जहां पे हमें कवरिंग चाहिए ना, मॉलिफिकेशन भी उसी टर्म को डिनोट करता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, अभी और कोई पॉइंट आपको किसी को पूछना हो तो बताइए। नो मैम। ओके, ये यूनिट आपको क्लियर हुई? यस मैम। कोई और इसमें कोई और कोई क्वेश्चन अराइज, आपको कोई क्लासिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन हो, एनी कंफ्यूजन फ्रॉम योर साइड, प्लीज आस्क। नो मैम, अभी तो नहीं है अभी। ओके ओके, आप इस यूनिट को सेशन में करेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। बाकी कुछ नहीं है, कॉस्मेटिक हमारी डेली लाइफ से अगर आप इसको डिनोट करके समझेंगे ना, सबके यस मैम। टेबल्स में कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स होती हैं, है ना। बाथरूम्स में देखो तो शैम्पू लोशंस होते हैं, और अगर वैसे ड्रेसिंग टेबल्स में देखो तो लिपस्टिक्स भी सबको दिखेंगी, फेस पाउडर्स भी सबको दिखेंगी। कॉस्मेटिक का काम ही कवर करना होता है, जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे डिसऑर्डर्स कह लो, या ये कह लो हमारी स्किन के जो कहते हैं ना प्रॉपर्टी जो है, भाई थोड़ा बहुत विंटर सीजन है, ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज कर ली, ठीक है। बाल सेट नहीं है, सेटिंग स्प्रे लगा लिया, ठीक है। कोई लेडीज हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, लिपस्टिक्स लगा ली, फेस पाउडर लगा लिया, वैनिशिंग क्रीम्स, ये जस्ट ये होता है कि हमारी स्किन की जो इम्प्रॉपर इमैनर चीजें हैं उसको ये उस चीज को कवर करने का काम करती है। मॉलिफिकेशन भी उसी का काम करता है, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट है ना ये खत्म होती है। और इसके अलावा और किसी यूनिट्स में से आपको कोई क्वेश्चन अराइज करना हो तो पूछ सकते हैं। नो मैम, अभी तो नहीं, अभी मैं यूनिट मैम पूरा अभी पढ़ा नहीं हूँ अभी। कोई बात नहीं, आप इस सेशन को बाद में भी समझेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ फिर आपकी ये क्लास ओवर होती है, ठीक है जी। ओके मैम। हाँ जी, इसी के साथ आपकी क्लास ओवर कर जाते हैं, आपकी यूनिट्स ही कवर हो गई है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं।
ठीक है, फाइन। मुझे लगता है कि और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये क्लास अभी एंड कर रही हूँ। आप ये यूनिट अपनी करके आए, ठीक है? कोई क्वेरी है तो ओके मैम। क्वेश्चन अराइज करें, ठीक है? यस।